एक गणेश T120 मेल टाइगर वो भी करता है। एक रिद्धि अभी तो उसने कब्जे दिए जोन नंबर 3 में, लेकिन वो रिद्धि वो भी ऐसे ही यूज करती है, कवर की तरह यूज करती है व्हीकल्स को और किल करती है। तो ये जो तीसरा चेंज हुआ ना, ये इतना इतना तगड़ा चेंज है कि ये कंजर्वेशन की अच्छाइयों को बताता है कि टाइगर ने ये फील किया कि मैं इस गाड़ी के साथ या इन लोगों के साथ सेफ। इस कॉल में मैं हूं, मैं आपका इंट्रोडक्शन दूंगा थोड़ा, और मेरे साथ पार्थ शारदा है जो कि कोटा में रहते हैं। तो हम दोनों ही मिलके ये इनिशिएटिव कर रहे हैं, कोटा से रिलेटेड पॉडकास्ट, और जितने भी लोग हैं जो कोटा में किसी भी तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या किया है पास्ट में, तो उनको हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से साथ में ला रहे हैं। एंड दे कैन बी फ्रॉम एनी फील्ड, दे कैन बी फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू फॉरेस्ट टू बिजनेस टू एजुकेशन, एनी फील्ड। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी IAS लोगों का किया था जो कोटा से निकले हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो स्टार्टअप वगैरह चलाते हैं, वैसे लोग जो एजुकेशन के हैं, जैसे प्रमोद महेश्वरी जी हैं, वैसे लोग, डॉक्टर्स। तो हर एक फील्ड के लोग इसमें हम साथ में जोड़ रहे हैं। एंड just a small introduction about myself. I'm Pallav, born and raised in Kota, and then I did my engineering from Maharashtra, and then MBA from one of the IIMs. And I've been working and living abroad for a couple of years, where I'm an advisor to the banks. I've had a few startups and also run a couple of social projects in Kota and around the place. And with me is Parth. He's not visible on the video because just to keep the interaction between us two, अपन पॉडकास्ट भी चालू करते हैं। प्लीज मैं इंट्रोडक्शन आपने। मेरा नाम यादवेंद्र सिंह राजावत है। I am from Savai Madhopur, where the Ranthambore Tiger Reserve is. So I started my guiding career in 1992. That was the first license in the history of Ranthambore in any of the wildlife sector in India. Not only in Ranthambore, in India. That was the first license. So this means now I have completed around 32 years, out of which around 27 years I was the president of the Guide Association of Ranthambore continuously. I am a guest faculty of forest as well as the tourism department. I am a selection board member for the guides. I am a entry board members for the guides. Now I am working as a naturalist. Along with this, I'm also running my small travel company by the name of Tiger Eye Adventure Tours. In 2012, I won the Best Wildlife Guide Award of All India, around 5 times Best Wildlife Guide Award of All Rajasthan, once the Best Wildlife Guide Award of Savai Madhopur Ranthambore National Park, and recently, last year, on 27th of September, which is the World Tourism Day, I won the Best Wildlife Guide Award of North Region from Tourism Department of India, and that was given by the Honorable Vice President, Mr. Jagdeep Dhankar in Delhi at Vigyan. Nice. That's only a small description about Yadvendra Singh and about Yadvendra Singh. There are several articles on me, even recently in Travel and Nature, something like that. I will send you the Sure, yes, WhatsApp, and Outlook Traveler, Man Magazine, G Magazine. I forget the rest of the names. Yes, please go ahead. Yeah. So thanks a lot for your wonderful kickoff. So I obviously have a lot of questions, and I'm basically trying to represent our audience. Of course, our audience is very hard to be represented by just one person, but trying to bring the questions and curiosity, which is usually among the people, not only from Rajasthan, but also from outside. So, sir, what does your job, which basically you said you did for 20 plus years as a nature guide, or there are various names, trekker, guide. What does a job entail? Job का मतलब क्या होता है? क्योंकि हम जब जाते हैं as a tourist, we are very focused on कि टाइगर दिख जाए या जानवर दिख जाए, तो कभी इतना इंटरेक्शन हो नहीं पाता पर्सनल लेवल पे। तो आपकी ये जॉब का मतलब क्या होता है? क्या करते हैं ट्रैकर या क्या गाइड लोग क्या करते हैं? देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था, it took 1 year to feed forestry department what does it means, to explain, to teach them, and I taught them. Fortunately, I taught them what does it means. I said, sir, please start a nature guide services. Guide means the journal thinking is the monumental guide, and इसमें हम रणथंभौर national park, which is a wildlife area, उसमें है, तो I gave the name nature guide, and they asked what does it mean. I said they will tell the guest
this is tiger, this is spotted deer, this is sambar deer, this is dry deciduous forest or the dhok trees, this and that, this and that. They said, no, we don't need any. But I kept trying and trying and trying, and it took 1 year for me to teach them the please start a guide facilities. And we were only 3 that time. So नेचर गाइड जो वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया हमारे द्वारा वो था कि वाइल्ड लाइफ के बारे में गेस्ट को, टूरिस्ट को, जनता को, दुनिया को बताना, एक्सप्लेन करना कि वाइल्ड लाइफ क्या है. क्योंकि आज तक जो भी कोई टूरिज्म होता था वो मोन्यूमेंटल टूरिज्म होता था, जहां पर कि एक गाइड मिलता था आपको, वो बताता था 1940 में ये मोन्यूमेंट बनाया गया था, मिस्टर सो एंड सो ने बनाया, दैट्स इट, चैप्टर क्लोज. लेकिन नेचर में या वाइल्ड लाइफ में या फॉरेस्ट में गाइडिंग करना एक टफ टास्क था मेरे लिए. इतना टफ था कि नेचर चेंजेस एवरी सेकंड. अब उसके आपको एक्सप्लेन करना है. ये परमानेंट खड़ा हुआ मोन्यूमेंट तो है नहीं, इसकी हिस्ट्री वही रहेगी, किसने बनाया वही रहेगा, लेकिन नेचर एकदम से चेंज होता है. नेचर के साउंड एकदम से चेंज हो रहे हैं. कहीं टाइगर निकल रहा है तो अलार्म कॉल्स आती है, बर्ड्स बोलती है, एनिमल्स दौड़ने लग जाते हैं, हर तरह की एक्टिविटीज होती है. कई बार होता है बिना किसी कारण के ये एक्टिविटी शुरू हो जाती है, तो उसको ऑब्जर्व करके समझना, फिर एक्सप्लेन करना. तो मेरा जो मानना था, क्योंकि मेरा एक पैशन था वाइल्ड लाइफ, मेरे पास पेट बहुत थे, अभी भी हैं, स्पेशली डॉग्स, बर्ड्स, फिश एक्वेरियम एक्सेट्रा. तो इसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट था, और इंटरेस्ट की वजह से मेरी लगन थी, मेरा पैशन जो था उसमें मैं एक्सप्लेन करता गया, सीखता भी गया, बताता भी गया और एजुकेट भी करता गया. बेसिकली जो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपका क्वेश्चन पे आता हूं मैं कि नेचर गाइड का क्या मतलब होता है, क्या वर्क, जॉब ऑफ नेचर क्या है. जॉब ऑफ नेचर मेनली जो मैं समझता हूं आज के सिनेरियो में कि एक नेचर गाइड का जॉब ऑफ नेचर जो होना चाहिए वो है टू एजुकेट द पीपल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एज वेल एज द एनिमल. फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व कैसे किया जाए, एंड what is the need, what is the reason behind to why we should save these things. I mean the forest or the animals or whatever it is, the Save the Tiger campaign, etc., etc. So one should educate the people first. Along with that, we are earning for our livelihood. Okay. Or how did you enter this field? Did it happen by chance, or did you try to find कि एक ऐसी job जिसमें मुझे मजा आए, या नेचर का भी थोड़ा रोल रहा है? How did you land here, मतलब 1992 में? थोड़ी सी फनी स्टोरी है. When I was in 7th standard, I was sitting at the Jodhpur train station. It was my curiosity to attract towards the foreign nationals. I saw a group के साथ में एक escort भी थे. I said, यार ये foreigner हैं, इनके साथ में ये Indian कैसे है? How come? Then I went straight away to that Indian escort and I asked, how come you are going and roaming around with these foreigners? Where are from? He said, they are from UK and I am an escort. I said, what does it mean? What is the meaning of escort? Then he explained me. I said, can I? He said, yes, you can also work as an escort, but first of all, you have to finish your studies. Then you should gain the knowledge about the areas in which you want to work in. Then I said, I have an interest in wildlife because I am an animal lover since my childhood days. So I said, okay, let's go and work in this. Because my father was a football coach, so I kept roaming around in Rajasthan, but I never stayed in my hometown, Savai Madhopur, where the Ranthambore Tiger Reserve is. Okay. I came after the retirement of my father in 1985. I said, let's work on my project. So I was a member of Pen Pal Friendship Club as well. So I got the letters from abroad, so many letters. In every letter I wrote, we have Ranthambore Tiger Reserve here. I love the tiger. I love the sambar. I love the spotted deer, like this. Then they encouraged me a lot. Oh, it's a nice thing. Wildlife is a beautiful place. Then I started reading about the Ranthambore and all these things. And that thing created some interest in me, and I worked on that. And now I'm working in it. So when you said 1992, you were the first licensed tour operator or guide. So what were the situation then? थोड़ा हमको 30 साल पीछे का ले जाइए और ऑडियंस को बताने को, मतलब because आपको इंटरेस्ट था, आप सवाई माधोपुर में भी थे, इसकी कोई एकदम स्पेसिफिक एजुकेशन या शायद उस टाइप की नहीं होती थी. हाउ डिड यू लैंडेड हियर, मतलब आपने फिगर आउट कैसे किया? देखिए, जब ये स्टार्ट किया था, then everybody started laughing on us.
क्या है यार गाइड, वाइल्ड लाइफ में गाइड क्या मतलब होता है इसका? और जब हम गाड़ी के अंदर इंट्रोड्यूस करते थे हम अपने आप को, सर माय नेम इज सो एंड सो, आई एम योर नेचर गाइड और द नेचुरलिस्ट, व्हाट टू डू विद यू सर, वी डोंट नीड एनीवन एल्स एज अ नेचर गाइड। आई सेड सॉरी, इट्स अ कंपल्सरी एंड यू हैव टू टेक अ नेचर गाइड अलोंग विद यू। सो दैट टाइम जब हमने शुरुआत की थी, तो हमारा जो मेन वो था वर्क, क्योंकि हर कोई समझता नहीं था नेचर गाइड क्या होता है, हमें क्या एक्सप्लेन करना है, ये भी ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया था किसी के भी द्वारा, हमारी ट्रेनिंग में भी हमें एक्सप्लेन नहीं किया गया था। लेकिन हम इतना जरूर बताते थे कि रणथंभौर नेशनल पार्क है, ये तब बना था, इतना एरिया है, इतने टाइगर है, ये एनिमल्स हैं, दैट्स इट। बट अलॉन्ग विद दैट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, आज आप रणथंभौर के ही कोई लीजिए, रणथंभौर में आपको जगह जगह गंदगी नहीं मिलेगी। तो दूसरी चीज, नीचे उतरना अलाउ नहीं है, वाइल्ड लाइफ एरिया है, नीचे उतरना अलाउ नहीं है, विच इज नॉट सेफ। तो हमारा जो काम था, ऑफिसर इतना ही ऑफिसर जानते थे, वो कहते नीचे मत उतरने देना किसी को, नॉट अलाउड, कोई चीज फेंके ना, जैसे बेसिक हाउसकीपिंग टाइप मतलब। हाँ, तो वो ध्यान रखना। प्लस अगर कुछ इलीगल एक्टिविटीज हम, क्योंकि जिस टाइम हमने स्टार्ट किया था दैट टाइम आई सॉ सम विलेजेस इनसाइड द पार्क, ग्रेजिंग होती थी, वुड कटिंग होती थी, हम उसको रिपोर्ट करते थे, सर वहां पर ऐसे ऐसे वुड कटिंग हो रही है या वहां पर ग्रेजिंग हो रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम जाती थी, रेगुलर बेसिस पे जब टीम जाने लगी तो वो ग्रेजियर्स जो थे वो भी धीरे धीरे पुश आउट होते गए और पार्क के बाहर निकल गए, जो वुड कटर्स थे उन्होंने आना बंद कर दिया। तो हम जो स्टार्ट किए गए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, जो कि हम आईज एंड ईयर्स बने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, जिसका बेनिफिट फॉरेस्ट को ये मिला कि वहां से वुड कटिंग रुकी एंड ग्रेजिंग जो है वो रुकी। और ग्रेजिंग और वुड कटिंग जब रुकी तो टाइगर का हैबिटेट डेवलप हुआ, तो एनिमल्स वहां पर आने शुरू हुए, एनिमल्स आने शुरू हुए तो टाइगर की फ्रिक्वेंट जो है वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। अब देखिए, पुरानी जितनी भी बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो बुक्स में एक चीज लिखी हुई होती है कि tiger is a highly nocturnal animal. Yes, yes, yeah. Right? But not now. Yeah. Now one can see their diurnal activities. How come this change happened? Because जब वो बुक्स लिखी गई थी, पार्क जैसे रणथंभौर का मैं लेता हूँ, ये सभी जंगलों में गांव बसा करते थे, रणथंभौर में भी विलेजेस थे, 20 विलेजेस थे, विलेजर्स घूमते थे इधर उधर, और टाइगर को ग्रासलैंड नहीं था, बुशेज नहीं थी, वुड कटिंग होती थी तो बुशी जो कवर था वो नहीं मिल पाता था टाइगर को, तो टाइगर सिर्फ नाइट में ही बाहर निकलते थे, क्योंकि दिन में डिस्टर्बेंस होता था। दिन में जब डिस्टर्बेंस होता था तो वो ना तो बाहर निकल पाता, ना उसको कोई कवर मिलता, क्योंकि ग्रासलैंड कैटल ग्रेज कर जाते थे, बुशी या जो छोटे मोटे पेड़ पौधे थे गांव वाले काटते थे, तो उसके पास कवर नहीं था। कवर अगर नहीं था तो वो कुछ किल नहीं कर पाता था। ऑफ कोर्स फूड चेन का अपेक्स मेंबर है टाइगर, ऑफ कोर्स बहुत पावरफुल है, लेकिन दे कांट रन फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड, क्योंकि इनका ब्लड जल्दी गर्म हो जाता है। और एक 3 to 8 सेकेंड्स ये एक टाइम लिमिट है अकॉर्डिंग टू द वेदर सिचुएशंस। समर में 3-4 सेकेंड्स है, विंटर में दैट गोज अप टू द 8 सेकेंड और 9 सेकेंड, तब तक ही दौड़ सकता है टाइगर। उसके बाद में मतलब लंबी स्प्रिंट नहीं कर सकता टाइगर। दे आर अ वेरी गुड स्प्रिंटर रादर देन ए रनर। ओके, रनर नहीं, अच्छा, लेकिन स्प्रिंट मतलब, अच्छा, ये स्प्रिंटर है और स्प्रिंटिंग के लिए उनको दे नीड अ कवर। तो जब 1976 से 79 के पीरियड में प्रोजेक्ट टाइगर के लॉन्च हुआ था इंडिया में 73 में, तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ, उसमें 3 ही मेन पॉइंट थे, एजेंडा उसके 3 थे। नंबर 1, प्रॉपर फूड सप्लाई टू द टाइगर, शेल्टर फॉर द टाइगर। प्रॉपर फूड था, जंगल में बहुत है जानवर, वाटर, नेचुरल वाटर होल्स भी काफी हैं, स्ट्रीम्स हैं, वाटर पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं और दूसरे अदर सोर्सेज हैं पानी के। बट द प्रॉब्लम थी, क्योंकि गांव वाले रहते थे जंगल के अंदर, प्रॉब्लम थी शेल्टर में, बिटाट में। तो 76 से 1979 के पीरियड के बीच में जब रणथंभौर के जंगलों में से गांव वालों को बाहर रीलोकेट किया गया, उसके बाद ग्रासलैंड डेवलप हुए। अब मैं आता हूं अपने पहले पॉइंट पे जो मैंने कहा था, ग्रासलैंड डेवलप हुए तो फिर ये जो प्रे बेस एनिमल है, स्पॉटेड डियर है, सांभर है, दूसरे एनिमल्स हैं, वो आना शुरू हुए तो ऑब्वियसली टाइगर का भी उनके पीछे पीछे आना ही होगा। कवर मिलने लगा तो टाइगर ने भी रोम करना स्टार्ट किया। इसके बाद में शुरू हुई टाइगर की डे टाइम जर्नी, डायरनल एक्टिविटीज जिसको बोलते हैं। इससे पहले तो टाइगर हाईली नॉक्टर्नल एनिमल था,
लेकिन उसके पीछे रीजन था विलेजर्स। ये तो मैंने इसका मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जब, और अच्छा सेगवे है टाइगर पे बात करने का। मतलब आप कह रहे हैं कि टाइगर जैसे एनिमल का भी बिहेवियर कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द इकोसिस्टम, जो चेंजेस आते हैं, जैसे कि आपने ये एग्जांपल दे रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। एक और चेंज बताऊं टाइगर का। हाँ जरूर। मेरी फोटोग्राफ भी है, मेरी बुक में भी मैंने डाली है। ओह सॉरी, मैं बताना भूल गया था। I have written an informative book on and about Ranthambore and its wildlife with my own photograph, which is only one in the world with that much information about Ranthambore's flora and fauna. वेरी नाइस। उसमें मैं आप लिंक शेयर कीजिएगा पॉडकास्ट के बाद, हम लोग जरूर अपने पॉडकास्ट में भी लिंक शेयर करने की कोशिश करेंगे। श्योर, बट अनफॉर्चुनेटली वो अब्रॉड में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ अमेजोन इंडिया में ही अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, Exactly, कोई बात नहीं, इंडिया तो चक्कर करता रहता है। no problem. Okay, मैं तो और आई वाज देयर इन दिसंबर। Yeah, I was there. this last December. I will come again in November. Yeah. Okay, where do you Ite का जो है, what's the name? retreat? So, Fateh Fateh's Retreat. Yes. हाँ, Yeah, तो sure. मैंने उसके अंदर एक और मैं आपको बताऊं, जो चेंजेस मैंने, आपने पूछा ना टाइगर में जो चेंजेस आए कि डायनल एक्टिविटीज वो शुरू हुई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एंड नीड्स एंड मूड्स। जब टूरिज्म स्टार्ट हुआ वाइल्ड लाइफ सेक्टर में, तो टाइगर दिखता था वो एक सेकंड के लिए एक, लेकिन धीरे धीरे जब ये गाड़ियां जंगल में जाना हुआ शुरू और इनका शुरू सेकंड चेंजेस, थर्ड चेंजेस जो हुआ, कुछ जो स्मार्टी टाइगर्स हैं वो क्या करते हैं, दे यूज द व्हीकल्स एज ए कवर टू किल समथिंग एल्स। Okay. तो जो स्मार्ट है, जैसे मछली थी रणथंभौर की मछली ने ऐसा काफी बार किया। अब एरोहेड वगैरह है, कुछ और टाइगर्स हैं जो अभी भी करते हैं। Wow. एक गणेश T120 मेल टाइगर, वो भी करता है। एक रिद्धि, अभी तो उसने कब्ज दे दिया जोन नंबर 3 में, लेकिन वो रिद्धि वो भी ऐसे यूज करती है, कवर की तरह यूज करती है व्हीकल्स को और किल करती है। तो ये जो तीसरा चेंज हुआ ना, ये इतना इतना तगड़ा चेंज है कि ये कंजर्वेशन की अच्छाइयों को बताता है कि टाइगर ने ये फील किया कि मैं इस गाड़ी के साथ या इन लोगों के साथ सेफ। आप देखिए, अगर वो सेफ फील नहीं करते हैं तो अपने कब्ज को लेके नहीं आते ना। जब बच्चों के साथ होता है तो सबसे खतरनाक होती है वो फीलिंग। Yes. बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, 1-1 फीट के लंबे बच्चों को लेकर के टाइगर गाड़ियों के पास आ जाती है। क्यों? उसे मालूम है इनसे मेरे बच्चों को खतरा नहीं है। अब एरियाज हैं जो रणथंभौर में, एक्चुअली लॉ को भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, थोड़ा रूल्स भी चेंज करने चाहिए। 20% एरिया इज ओनली अलाउड फॉर द टूरिज्म एक्टिविटीज। अब उस 20 एरिया के टाइगर्स इतने सेफ हैं और दे आर ब्रीडिंग वेरी वेल, बट रेस्ट जो पार्ट है 80%, उसमें नंबर ऑफ टाइगर्स भी कम है। नंबर 2, वो डरते भी बहुत है। नंबर 3, उनके जो ब्रीडिंग परसेंटेज है वो काफी कम है। Okay. So, आप जो टूरिज्म कंजर्वेशन में ये का एक तरह से मतलब मोटा मोटा तो टाइगर सेफ फील करता है इन वे, जो आपकी इन वे कंजर्वेशन में हेल्प करता है। उसमें मेरे 2 पॉइंट है। बिल्कुल टाइगर कंजर्वेशन में हेल्प करता है, करता आया है, करता रहेगा, बट एक लिमिटेशन तक। है अभी सपोज कीजिए 20% एरिया ही अलाउ है, और अभी किसी के दिमाग में आ जाएगा नहीं नहीं यार टूरिज्म तो टाइगर को बचा रहा है, लेट से 500 व्हीकल्स कर दो, तो वो एक माइनस पॉइंट चला जाएगा। सर अभी कितने व्हीकल्स यहाँ पे? लगभग 140। अच्छा, ओके 140 और 10 जोन्स। अच्छा, इन अक्रॉस 10 जोन्स। अच्छा, 140 व्हीकल्स। तो मेरा कहना है कि जो 20% एरिया ही अलाउ है टूरिज्म के लिए, उसको इंक्रीज किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, उसके लिए रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली 5th को दिल्ली में एक बुक लॉन्चिंग थी, बहुत अच्छी बुक है, आई थिंक इंटरनेशनल लेवल की बुक है वो। तो उसके प्रोग्राम में मैं गया था, देयर आई मेट एंड टॉक विद मिस्टर उल्लास कारंत। मैंने कहा सर ये आप चेंज करो थोड़ा सा, इसमें समझाओ गवर्नमेंट को कि 20% एरिया को बढ़ाया जाए, लेट्स से 40% किया जाए, क्योंकि जो 20% एरिया है जिसमें टूरिज्म रन होता है इंडिया के सारे टाइगर पार्क्स के अंदर, उसमें पॉपुलेशन ज्यादा है टाइगर की, टाइगर ज्यादा सेफ फील करता है, टाइगर ज्यादा ब्रीड कर रहा है, और रेस्ट ऑफ द एरिया में टाइगर इतना ब्रीड भी नहीं कर रहा, और नंबर ऑफ टाइगर्स भी काउंट भी कम है,
प्लस वो सेफ भी नहीं रहता है। तो जब आप 20% को 40% कर देते हैं, तो जो मैंने वर्ड यूज किया, वी आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द गवर्नमेंट। तो जो भी कोई इलीगल एक्टिविटीज होती है, या हम एक एक हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप पे, हम एक एक टाइगर की नजर रखते हैं। आज टाइगर T120 का मूवमेंट कहाँ था, कहाँ साइट हुआ, उसका मूवमेंट किधर गया, कौन से जोन पे दिखा, क्या एक्टिविटी थी, हमें सारा पता है। 2 या 3 दिन 4 दिन तक कोई टाइगर अगर गायब हो जाता है या दिखाई नहीं देता, तो फिर भी स्टार्ट डिस्कसिंग विद देम, क्या लास्ट टाइम वहां देखा था, उसके आप उधर चेक करो, उधर से उस रोड पे उसके पगमार्क चेक करो, कहीं किल किया है या आगे निकल गया कैसे। ये पूरी रिपोर्ट डिपार्टमेंट को मिलती है। अभी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट का, और वो इतनी मैनुअल ट्रैकिंग नहीं हो पाती है। तो ये अगर करेंगे तो मैनुअल ट्रैकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी टूरिज्म की गाड़ियों से ट्रैकिंग होगी। और जो नंबर ऑफ व्हीकल्स आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, वो उस 20% एरिया में बढ़ाओ, ताकि पेट्रोलिंग अलोंग विद मैनुअल ट्रैकिंग भी हो जाए और आपके टाइगर्स भी सेफ फील करें। तो सर अपने यहाँ रणथंभौर में या इंडिया में, जैसे अफ्रीका में होता है, वो चिप नहीं डालते हैं टाइगर्स पे, या फिर ऐसे कॉलर नहीं होती है? सर कॉलर थी, रणथंभौर में भी डाली थी, उसका रीजन अलग था। अफ्रीका में क्या है कि अफ्रीका के जंगल बहुत बड़े हैं, फ्लैट लैंड ज्यादा है, फ्लैट लैंड ज्यादा है। हमारे यहाँ पर है ना, रॉकी टेरेन है, थिक फॉरेस्ट है। नंबर 2, जो चिप की बात आप कर रहे हैं, चिप या कॉलर कोई भी, जो कि रणथंभौर में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो इसलिए किया गया था, जैसे सपोज कीजिए कोई टाइग्रेस है, जैसा कि हुआ है रणथंभौर में, टाइग्रेस थी, उसके कब्स थे, वो कब्स 22-23 महीने के होने लगे, तो ऑब्वियसली 24 से 26 महीने के आसपास टाइगर्स के कब्स अलग होकर के अपनी अलग से टेरिटरी बनाते हैं माँ से। लेकिन माँ क्या करती है, उस एज ग्रुप तक उन कब्स को घुमाती है, उस एरिया में इलाके दिखाती है कि आप कहाँ कहाँ टेरिटरी बना सकते हो, अच्छा, कहाँ कहाँ बाहर निकल सकते हो, कहाँ कहाँ आप सेफ हो। तो इस तरह से वो जब बनाती है, तो अब उस माँ की टेरिटरी के चारों तरफ काफी स्ट्रॉन्ग टाइगर्स की टेरिटरी थी, और वो जो कब्स थे उसमें मेल थे 2। तो ऑब्वियसली मेल फाइट बहुत सीरियस होती है, तो इसलिए उनको कॉलर पहनाई गई कि भाई कल को ये अगर बाहर माँ का साथ छोड़ के बाहर जाएंगे अपनी टेरिटरी, अपना इलाका बनाने के लिए, तो ये कौन से एरिया में जाते हैं। हर किसी के पीछे कोई ड्रोन कैमरा तो लगा हुआ नहीं है, सही तो बात है। दिखेगा कहाँ चला गया। कई जगह है जहाँ पर फुटप्रिंट नहीं आते हैं, और फुटप्रिंट से आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, जो हमारा पुराना मेथड था, जिसके ऊपर आज भी काफी सारे वाइल्ड लाइफ डिस्कशन करते हैं कि देवर 100,000 टाइगर्स इन इंडिया, व्हाट द हेल इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग, ओनली 3,000 लेफ्ट। भाई 100,000 कैसे काउंट किए, उसका मेथड जो था वो पगमार्क सिस्टम था। जहां थिकनेस ज्यादा है सोइल की, वहां बड़ा पगमार्क आ गया, अलग से टाइगर बन गया। जहां थिकनेस कम है, वहां शॉर्ट छोटा पगमार्क आ गया, क्योंकि हार्ड है सोइल, तो छोटा पगमार्क इंप्रेस होगा, तो उसके अलग टाइगर काउंट हो गया। तो आप वो टाइगर कहाँ मूव कर रहा है, इसको भी आप पता नहीं लगा सकते, इसलिए कॉलर पहनाएगी कि उसको ट्रैक किया जा सके कि ये टेरिटरी कहाँ जाकर के बना रहा है। मेन रीजन टाइगर के कॉलर लगाने का रणथंभौर में ये था। अच्छा। जब उसकी टेरिटरी एस्टेब्लिश हो गई, तो फिर उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ये टाइगर यही मूव कर रहा है, दैट मीन्स ये इसने टेरिटरी बना ली है। ऐसे ही फिर एक टाइग्रेस थी अपने सुंदरी, जिसके कॉलर लगाया गया T17, जो कि मछली की लास्ट लेटर थी। ओके। तो उसके कॉलर लगाया, क्योंकि उस लास्ट लेटर में 3 फीमेल थी, और तीनों आपस में बहुत लड़ती थी। जनरली क्या होता है कि जो टाइग्रेस के कब्स होते हैं, उसमें फीमेल नॉर्मली या मोस्टली अपनी माँ का इलाका कैप्चर करती है, और मेल दूर चले जाते हैं टेरिटरी बनाने के लिए। तो जब तीनों ही बहनें माँ से लड़ने लगी, आपस में भी लड़ने लगी, तो ये सबसे ज्यादा किक आउट होने वाली टाइग्रेस थी, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। जो हमने देखा फाइट में कि ये हमेशा पिटती थी, बाकी 2 बहनें को पीटती थी। तो इसके कॉलर लगाया, ये बाहर जाएगी तो कहीं गांव में निकल जाए, कहीं बाहर का रूट पकड़ ले, कहीं इधर उधर चली जाए, तो इसलिए इसके कॉलर लगाया गया था। तो कॉलर लगाने का रणथंभौर में या ज्यादातर इलाकों में रीजन था, उसकी मेन टेरिटरी कहाँ वो बना रही है उसको फाइंड आउट करना। ओके। दूसरी चीज,
आप कॉलर लगा दो, कॉलर एक नेकलेस बड़ा गंदा दिखता है एक वाइल्ड एनिमल के गले में। दूसरी चीज, एक वो आपने चिप की बात की, चिप बॉडी के अंदर लगता है, विजिबल नहीं होता, बट दोनों ही चीज में जैसे ही आपने उसको ट्रैक करने के लिए डिवाइस को ऑन किया, आपने एंटीना ऑन किया, तो वो एंटीना आपका कनेक्ट होगा सैटेलाइट से। सैटेलाइट आपके ट्रांसमिशन से वो कनेक्ट होगा आपके कॉलर से या आपकी चिप से, तो उसमें एक वाइब्रेशन होता है। अच्छा, तो वो एक इचिंग सॉर्ट ऑफ थिंग हो जाती है एनिमल्स के लिए, वो थोड़ी कंफर्टेबल फीलिंग नहीं होती उसमें। ओह अच्छा, तो मतलब इट इज मतलब वो डिस्कम्फर्ट कॉज करता है एनिमल को। अच्छा, कंफर्ट ओह कॉज अच्छा। करता है, डिस्कम्फर्ट फील करता है, उससे उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है। सेकेंड रीजन कि जैसे मैंने कहा कि थिक फॉरेस्ट है, रॉकी टेरेन है, अप एंड डाउन है, अगर वैली में चला गया टाइगर तो आप एंटीना लेके सारे दिन घूमते रहो, आपको नहीं दिखाएगा वो। तो फिर हम्म, कोई फायदे वाली बात है नहीं। ओके हाँ, ओके। अफ्रीका में हैं तो इसलिए वो ज्यादा वो है कि आप तुरंत उसको ट्रैक कर लेते हैं, तो ज्यादा उसको ट्रांसमिशन कैच नहीं करने पड़ते। यहाँ तो लंबे टाइम के लिए ट्रांसमिशन कैच करने पड़ेंगे, और लंबे टाइम के लिए उसमें वाइब्रेट करेगा, और वो बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसके अच्छा उसके अच्छा, बिहेवियर। ओके। तो अभी मैं थोड़ा सा टूरिज्म पे की तरफ मुड़ता हूँ कि तो और टाइगर, आपके ऐसे टाइगर को देखना एक नॉर्मल इंसान के लिए, कि मे बी अगर आप अपने एक्सपीरियंस, आपने काफी टूरिस्ट लोगों को देखा है, आप यू ऑल्सो सी देम ऑन कंटिन्यूअस बेसिस कि उनका रिएक्शन क्या होता है टाइगर देखने पे या नहीं देखने पे, व्हाई इज इट अ बिग थिंग? इतना क्यों, इतना पॉपुलर क्यों है टाइगर देखना? व्हाट डू यू थिंक मतलब? देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मेरा अपना, बिकॉज आई डिड मोर देन 7,000 सफारीज। सो इन 7,000 में मैंने दुनिया के टॉप वीवीआईपीज और सबको घुमाया है। बट एक टाइगर क्या है जो मैंने वर्ड यूज किया है, दैट्स अ मेंबर ऑफ द अपेक्स मेंबर इन द फूड चेन, और इतना पावरफुल जानवर है। फिरेशियस तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा है लेपर्ड फिरेशियस एनिमल। इतना पावरफुल एनिमल, इतना खूबसूरत एनिमल। आप एक तो देखते हो जू में पिंजरे के अंदर, तो आपकी फीलिंग क्या रहती है कि आई एम सेफ, क्योंकि वो बंद है। लेकिन जब हम्म व्हीकल में, खुले व्हीकल जब आप देखते हो, तो वो जो एक्साइटमेंट है, वो जो थ्रिलिंग होती है कि खुले में है टाइगर, आपके साइड से निकल रहा है, तो वो एक्साइटमेंट क्रिएट जो बॉडी में होता है ना, उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर फील होता है कि यार मैंने आज एक इतने वर्ड के इतने पावरफुल एनिमल को खुले में नजदीक से, तो ये जो फीलिंग लेने के लिए एक्साइटमेंट जो क्रिएट होता है ना। अब आपकी कॉलर से मैं इसको लिंक करूं, कॉलर अगर लगा दी जाती है और उसको ट्रैक किया, ले गए सीधे, गाड़ी ड्राइव की, विद इन 3 मिनट्स यू विल बी देयर वेयर द टाइगर इज, तो वो एक्साइटमेंट बॉडी में नहीं होगा। हाँ, आप ढूंढ रहे हो, अलार्म कॉल्स आ रही है, पग मार्क्स ढूंढ रहे हो, एक्साइटमेंट चल रहा है, कहीं पर भी हो सकता है टाइगर, किसी भी बुश के पीछे छिपा हुआ हो सकता है। ब्लड सर्कुलेशन को तो रेगुलेट करेगा ही, आपके जो माइंड के टिश्यूज है उनको इतना एक्टिवेट कर देता है कि आपके दिमाग में हर कोई ऐसा क्लू जागने लग जाता है जो कि आपको ये हिंट दे कि टाइगर कहाँ हो सकता है या टाइगर कहाँ हम्म। है। तो ये जो फीलिंग है, ये एक ऐसी फीलिंग है जिसको वर्ड्स में बताया नहीं जा सकता। जो लोग कहते हैं यार क्या मजा आ गया, रोम रोम खड़ा हो गया मेरा, तो वो जो रोम रोम, मुझे भी जब आफ्टर आई डिड मोर देन 7,000 सफारी, स्टिल आई फील सो एक्साइटिंग कि जैसे ही टाइगर दिखता है, मैं कई बार गेस्ट से ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। तो तो ये आपको 30 साल बाद भी व्हाट इज योर मोटिवेशन टू लाइक वेक अप एवरी डे एंड गो ऑन अ सफारी और गो ऑन दैट एडवेंचर एवरी डे? मतलब आपको क्या लगता है, आपने भी रिफ्लेक्ट किया होगा कि फ्रॉम अ यंगस्टर टू नाउ वेरी एक्सपीरियंस्ड इंटरनेशनल पर्सन इन दिस फील्ड, व्हाट इज द मोटिवेशन? मतलब इज इट टाइगर, इज इट समथिंग एल्स, कुछ स्पिरिचुअल मोटिवेशन, नेचर, क्या चीज है वो? नंबर वन ऑफ कोर्स टाइगर, नंबर टू नेचर विद प्योर ऑक्सीजन, जो आज के सिनेरियो में बहुत ही जरूरी है। हम्म अब देखिए, कोविड की प्रॉब्लम हुई, फॉर्चुनेटली एंड टच वुड कि रणथंभौर में इतने केसेस नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर की जो एयर क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, और ओके। हमारे लंग्स जो एयर क्वालिटी को इनहेल करते हैं
मिनिमम 3 आवर्स मॉर्निंग, मिनिमम 3 आवर्स आफ्टरनून में। तो 6 आवर्स में जो प्योर ऑक्सीजन अंदर जाती है हमारी, वो हमारे इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग करके रखती है कि हमने कोविड का टाइम बड़े आराम से गुजारा। तो एक मोटिवेशन ये था, क्या नेचर लेवल तो है ही, और वाइल्ड लाइफ पेशेंट था। हर बार ऐसा लगता था कि कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया करेंगे। हमें पहले से कुछ टाइम तो पहले से पता रहता है हम कौन से जोन में जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में वो प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। उस जोन में जा रहे हैं, हम पहले वो इलाका चेक करेंगे, वो टाइगर उस तरह हो सकता है, वो टाइगर उधर से निकलेगा, वहां उसको चेक करना है। तो ये प्लानिंग जो स्टार्ट होती है ना, ये मॉर्निंग में 5 o'clock पे जब हम घर छोड़ते हैं तब से स्टार्ट हो जाती है कि हमें कौन से इलाके में कौन सी जगह पे कितना टाइम देना है, क्या चेक करना है, और कहाँ पर खड़े होकर के वेट करना है। क्योंकि ये पेशेंस का काम है। वाइल्ड लाइफ देखिए पेशेंस का काम है। जरूरी नहीं है हर बार आपको टाइगर ही मिले। तो मेरा काम रहता है कि हर बार टाइगर का मुझे पता चल जाता है, टाइगर दिखना है नहीं दिखना है, नहीं दिखना है तो मैं उसे दूसरी तरफ डाइवर्ट करता हूँ। जैसे सांभर तो ले लिया, सांभर जो कि पूरे इंडिया में, जो रणथंभौर में सांभर डियर की साइटिंग होती है, वो पूरे इंडिया में किसी पार्क में नहीं होती। ना सिर्फ टाइगर, सांभर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रणथंभौर में इतना फ्रिक्वेंटली क्लियरिटी के साथ में दिखता है, इतने ज्यादा नंबर दिखता है। तो फिर उसको कहीं दूसरी ओर डाइवर्ट करना पड़ता है गेस्ट को, उसको मोटिवेट करना पड़ता है, उसको एजुकेट करते हैं कि टाइगर ही जरूरी नहीं है, ये एनिमल्स भी जरूरी है। एक ग्रासलैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है टाइगर के लिए। जो कि अगर ऐसे किसी को कह दें जिसको जानकारी नहीं है, तो क्या यार ग्रासलैंड कहाँ से जरूरी है? ग्रासलैंड नहीं होगा तो टाइगर सरवाइव नहीं कर पाएगा। सरवाइव नहीं कर पाएगा तो फिर देखोगे कहाँ से? तो हमारा जो मोटिवेशन, जो मेरे को मोटिवेट करता है, वो करती है नेचर बेसिकली। गॉट इट। और मैं अभी थोड़ा सा, सिंस भाई हम कोटा के हैं, मुझे आपका आपका रेफरेंस भी देवव्रत जी से मिला जो कि कोटा में काफी काम कर रहे हैं। थोड़ा सा यस। अपने कजन डिस्ट्रिक्ट पे मैं आपका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहूंगा कि और हमारा पॉडकास्ट भी कोटा रिलेटेड है। तो आप अपने शब्दों में बताइए कि हाउ डू यू सी मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, मतलब हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट, और वहां पे क्या चल रहा है, मतलब व्हाट आर योर इनिशियल व्यूज? मतलब देखिए, रणथंभौर से काफी सारे टाइगर्स सरिस्का भेजे गए और मुकुंदरा भेजे गए। रामगढ़ विषधारी जो नया पार्क बना है उसमें भेजे गए। ओके। ठीक है, जो भी सरकार डिसीजन लेती है, ठीक है, करना भी चाहिए। नंबर ऑफ टाइगर्स बढ़ रहे हैं तो दूसरी जगह उसको अगर आप शिफ्ट करोगे तो थोड़ा जीन पूल बढ़ेगा और थोड़ा टाइगर के नंबर भी सेफ रहेंगे। जहां तक मुकुंदरा की बात मैं करता हूँ, मुकुंदरा में क्या है, सबसे पहले तो मुकुंदरा को के फॉरेस्ट को सेफ किया जाए। कोई भी एनिमल्स वहां पर इंट्रोड्यूस करने के पहले ये फाइंड आउट किया जाए कि मुकुंदरा का फॉरेस्ट सेफ है या नहीं है। आप उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल बंद की जाए पहले। उसके बाद में उसमें ग्रासलैंड डेवलप हो, ग्रासलैंड के बाद में उसमें प्रे बेस्ड डेवलप। जब तक ये एक अच्छे अमाउंट में प्रे बेस्ड डेवलप नहीं होगा, तब तक टाइगर सरवाइव नहीं कर सकता मुकुंदरा। रीजन बिहाइंड, वो प्रे बेस की वजह से ही बाहर निकलता है। बाहर निकलेगा या तो उसको मार दिया जाएगा या इंजर्ड हो जाएगा। क्योंकि आजकल जहां पर भी खेती बाड़ी का काम हो रहा है, जहां पर भी फील्ड्स हैं, जहां पर किसान काम कर रहे हैं, फसलें उगा रहे हैं, आजकल फेंसिंग का चलन है। और फेंसिंग क्यों करता है किसान? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो एंटेलोप फैमिली का मेंबर मिलता है, नीलगाय एंटेलोप, वो सबसे ज्यादा फसलों को खराब करता है। ओके। उस ओके। नील के फसलों को बचाने के लिए लोग बाग फेंसिंग करते हैं, और फेंसिंग करते हैं तो उस फेंसिंग में भी टाइगर कई बार फंस जाता अच्छा। है। और फंस जाता है, सपोज कीजिए उसके कहीं उस वायरिंग से कहीं पर उसके कोई घाव हो गया, तो जहां तक टाइगर की टंग पहुंच सकती है वहां तक तो सेफ है। लेकिन कई ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जहां पर टाइगर की टंग पहुंच नहीं पाती है, वहां अगर कोई घाव हो गया ये तो थोड़ा सा इस पे ऑब्वियसली। थोड़ा समझाइए व्यूअर्स के लिए कि टंग क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब। देखिए, टाइगर का जो सलाइवा है वो एक हाईली स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल सलाइवा होता है। ओह अच्छा। टाइगर की टंग के ऊपर छोटे छोटे रेसेस निकले रहते हैं, जिनको बोलते हैं पिपली। पिपली।
जब उनके अंदर से वो सलाइवा निकलता है, टाइगर उस घाव को जब अपने टंग से चाटता है या रब करता है, तो वो जो बैक्टीरियाज उसके वुंड के चारों तरफ होते हैं, वो उस सलाइवा के एंटी बैक्टीरियल नेचर की वजह से मर जाते हैं। और जब मर जाएंगे तो किसी में भी, टाइगर ही नहीं, कोई भी एनिमल है या ह्यूमन बींग्स हैं, अगर वो बैक्टीरियाज मर जाते वो हीलिंग हीलिंग आपका वापस पॉज हो गया है यादवेंद्र जी। हाँ अभी सही हो हैं। गया, अभी सही हो गया। अच्छा, तो वो खुद की सफाई, खुद का ख्याल वो रख सकता है, मतलब कोई घाव हो जाए तो? ओके खुद ओके। नहीं तो ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बोला, और मेरा सवाल ये रहेगा कि ये मुकंदरा प्रोजेक्ट को तो काफी समय हो चुका है ना? तो ये जो पॉइंट्स आपने बोले, ये ऐसा मेरा मानना है, सुनने में तो इतने यूनिक नहीं लग रहे हैं, मतलब ये पता होगा लोगों को जो एक्सपर्ट्स हैं, तो इस पे क्या ध्यान नहीं दिया गया कि ध्यान लेट दिया गया? हमारे राजस्थान में जितने भी टाइगर पार्क्स बनाए जा रहे हैं, वो सब जल्दबाजी में बनाए गए हैं, जल्दबाजी में लिए गए डिसीजंस हैं। ओके ओके। पहले उन तो सेफ करना चाहिए, उसके बाद में एनिमल को इंट्रोड्यूस कीजिए। लेट्स से सरिस्का, सरिस्का तो मुकुंदरा से बहुत पहले का, सरिस्का तो पहले सेंचुरी था, पार्क तो बाद में बना है। सरिस्का में आज की तारीख में भी विलेजेस हैं, ओके। फ्रीक्वेंट मूवमेंट होगा, और इतना डेंस उसमें मतलब है धोंक के फॉरेस्ट, कि धोंक के फॉरेस्ट की वजह से ग्रासलैंड डेवलप नहीं हो पा रहे। ओके। जब ग्रासलैंड डेवलप नहीं हो पा रहे तो हर्बीवोर एनिमल, वहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हर्बीवोर एनिमल्स रुकते नहीं है। नंबर है पर एक जगह रुकेंगे नहीं, हर्बीवोर नहीं है, इतने वाटर होल्स नहीं है, तो टाइगर ऑब्वियसली इधर उधर बाहर निकलेगा। हम्म। और टाइगर ऑब्वियसली, चाहे मुकुंदरा ले लो, चाहे सरिस्का ले लो, या रामगढ़ विषधारी ले लो, टाइगर आसपास के गांव में भी एंट्री मार सकता है, या आसपास के गांव वालों के कैटल्स को भी मार सकता है। आज के सिनेरियो में क्या है, अगर किसी गांव वाले की गाय मार दी या भैंस मार दी जो कि 10 लीटर दूध देती थी, जिससे वो अपना फैमिली का खर्चा चलाता था बेच करके, उसके लिए टाइगर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए वो जानवर, उसका कैटल इंपॉर्टेंट है। तो वो एक ह्यूमन काइंड होता है कि रिवेंज वाली फीलिंग पैदा हो जाती है आदमी में। सपोज कीजिए टाइगर ने 10 अलग अलग आदमियों के कैटल्स मारे, दो के दिमाग में ये जरूर आएगा, यार इसने मेरी भैंस को मार दिया, तो इससे बदला लूंगा। बदला क्या होगा? उस एनिमल की मौत। कैसे? जैसा कि रणथंभौर में हुआ, एक दो टाइगर थे, मेल कब्स थे, सब एडल्ट, ऑलमोस्ट फुली ग्रोन, उन्होंने दो बकरियां मारी। अब वो बकरियां सबसे ज्यादा दूध देने वाली थी, जो ऑनर था उसके लिए, और वो उससे मार्केट में सेल करके अपने बीवी बच्चों को खिलाता पिलाता था। उसने कहा यार मेरी बकरियां मार दी, तो वो गया कहीं से पॉइजन खरीद के लाया, और ला करके वो जो डेड गॉड थी उसके अंदर उसने वो पॉइजन, अंधेरा हुआ क्योंकि वो गांव के नजदीक था इलाका, अंधेरा हुआ, अंधेरा होने के बाद में टाइगर्स आए, उन्होंने बकरियों को बड़े प्यार से खाया, लेकिन वो उनका लास्ट मील था। सेकंड थिंग, हमारा कानून इतना लचीला है कि एक प्रॉपर वे में पनिशमेंट नहीं मिलता है। प्रोसीजर इतना लेंथी और लंबा है कि कई बार कहीं ना कहीं लीक पुल रह जाती है, तो उससे जो पकड़ा गया है आपका, चाहे शिकारी ले लो या कोई गलत एक्टिविटी, ओकेजनली गलत एक्टिविटी करने वाला ले लो, वो बच जाते हैं। जब ये लोग बच जाते हैं तो फिर डिमोलराइजेशन होता है फॉरेस्ट ऑफिसर्स का। वापिस आपका म्यूट हो गया है राजेंद्र जी। हाँ अभी सही। दूसरी चीज क्या है कि गवर्नमेंट को जो कंपनसेशन देता है, वो कंपनसेशन बढ़ाना पड़ेगा। बीइंग ए प्रेसिडेंट मैंने काफी बार लिखा, और उसके बाद में गवर्नमेंट ने, थैंक गॉड कि उन्होंने थोड़ा तो कंपनसेशन बढ़ाया है। पहले आपको मालूम है, एक बकरी का, जब ये दो बकरियां मरने वाला मैं किस्सा सुना रहा हूं आपको, एक बकरी के 300 रुपए मिलते थे। अरे बाप रे। एक बकरी मर गई, उसका कंपनसेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 300 रुपीज देता था। 300 रुपीज किलो, तो पर किलो मटन आता है मार्केट में खरीदने जाओ तो। और उस बकरी आती कितनी है जैसे खरीदने जाए कोई तो? अब तो 7-8
तो मेरा अच्छा वो था, एक ऑफिसर थे जिन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सुना। उन्होंने कहा आपने इतने लेटर लिखे यार, कुछ तो बात है। मैंने कहा सर बात है, आप ये रिवेंज वाली जो मेंटेलिटी है ना, इसको चेंज सिर्फ कंपल्सेशन से ही कर सकते हो। अब कंपल्सेशन जो है, अब वो 300 को बढ़ा करके फिर उन्होंने 3000 किया, और जो 3000 एक भैंस के मिलते थे उसको 30,000 किया। बाप रे। यानी अगर वो 30,000 उसको मिल रहे हैं तो कम से कम वो 30,000 में वो कुछ एक दूसरा छोटा मोटा जानवर तो परचेज कर ही सकता है। 3000 में क्या खरीदे, नहीं आती थी 3000 में। भैंस को मरवा के बकरी खरीदने थोड़ी जाएगा। तो ये मेंटलिटी जो थी, ये चेंज करने के लिए कंपल्सेशन को बढ़ाना पड़ा, और गवर्नमेंट ने सुनी मेरी बात। लेकिन अभी भी इतना नहीं है, चीजें महंगी होती जा रही है, बहुत महंगी है। तो 15 साल से अभी वही चल रहा है। तो इसको बढ़ा करके और इतना करना चाहिए कि कम से कम रिवेंज वाली स्थिति खत्म हो, कि हम टाइगर को लूज ना करें। पॉइजन का केस सरिस्का में भी हुआ। ओके जब सर, रणथंभौर से सरिस्का का केस हुआ, वो इसलिए हुआ। ये तो काफी इंफॉर्मेटिव है सर। थोड़ा सा ओरिजिनल क्वेश्चन में मैं जाना चाहूंगा वापस, कि आप कह रहे हैं कि जल्दीबाजी में लिया गया डिसीजन जनरली रिजल्ट की तरफ नहीं ले आता है। चलो वो पॉइंट एक बार मान भी लें, तो मतलब क्या अभी जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं गवर्नमेंट से या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, उस पे आपकी क्या क्या टिप्पणी है? कि मतलब क्योंकि हम लोग भी बाहर बैठे हैं, हम सुनते हैं, लोकल लोग भी सुनते हैं कि भाई अभी टाइगर आया, फिर वो उसको कुछ बीमारी हो गई पेट में, या फिर कुछ और इन्फेक्शन हो गया। तो कभी कभार थोड़ा सा, मतलब ऑब्वियसली नॉलेज नहीं रहती लोगों को, पर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अनबिलीवेबल लगता है, मतलब कि ये क्या हो रहा है, टाइगर है, मतलब कभी पेट में बीमारी हो गई, कभी दस्त लग गए और मर गया। मतलब कई बार थोड़ा अनरियलिस्टिक सा साउंड करता है कि ये मतलब ये क्या कोई गेम चल रहा है, मतलब ये से है ना। तो मतलब इस पे क्या क्या आपका एनालिसिस है? मतलब क्योंकि एफर्ट्स तो कर रहे हैं, कुछ कुछ एफर्ट्स तो करते रहते हैं गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी, पर उससे रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब ऐसा लगता है। देखिए, गवर्नमेंट कैपेबल है, ऑफिसर्स इंटेलिजेंट है, करते हैं लोग बाग काम, और कर भी रहे हैं। बट उसका रिजल्ट इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि लोकल लेवल पे, जिसको कि हम बोलते हैं ग्राउंड लेवल पे, अभी पब्लिक एजुकेट नहीं हुई है। जिस आर यू इलाके रेफरिंग टू जो विलेजर्स, या ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं, विच ग्रुप आर यू रेफरिंग टू? विलेजर्स जो है। विलेजर्स, ओके। पीपल लिविंग अराउंड दैट एरिया थिंक टू दिस एरिया, we are trying to introduce this area as a tiger park or tiger reserve, whatever it is. So फिर उसके बाद में उनको बेनिफिट्स बताए जाए, जैसे कि हमने किया। रणथंभौर में पहले सिर्फ 5 जोन हुआ करते थे, आज है 10। नंबर 6 को जब इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, हमें पूरा पूरा दिन लग जाता था उन लोगों को समझाने में जिनकी गाय भैंस उस जंगल में ग्रेजिंग कर रही है। का आप लोग इसको बाहर, वो कल को आपको टाइगर ने, किसी ने गाय भैंस मारा, कोई बात नहीं, आपके ऊपर हमला कर दिया, आपको मार दिया तो क्या होगा? सरकार कानून से चलती है, और कानून ये कहता है कि आप जंगल में नहीं घुस सकते, तो आप तो इलीगली अंदर घुस रहे हो, तो आपको मुआवजा भी नहीं मिलेगा। सेकेंड थिंग, हम यहाँ पर टूरिज्म एक्टिविटी शुरू करेंगे और आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके ही फैमिली में से हम किसी को ड्राइवर बनाएंगे, किसी को कैटल गार्ड बनाएंगे, या किसी को वॉलंटियर बनाएंगे, या किसी को जैसे हमने वहां पर स्टार्ट किया इको डेवलपमेंट कमेटी, ईडीसी। ओके ओके। उन ईडीसी के थ्रू हमने उनके ईडीसी गाइड्स बनाए। तो आप जोन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 में अगर जाते हैं तो वो इको डेवलपमेंट कमेटी के गाइड जाएंगे, ना कि नेशनल पार्क के। ओह अच्छा अच्छा। एंड हाँ वो सब लोकल कम्युनिटी हाँ, को बिलोंग करते हैं? वो सब लोकल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो सब उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जो लोग बाग जंगल में गाय चराते थे, भैंस चराते थे, बकरियां चराते थे। अब वो उसी, क्योंकि उस इलाके की जानकारी उनको बहुत अच्छे तरीके से, वो जगह के नाम जानते हैं, उनको जगह जगह वाटर होल्स का पता है, कहाँ पर वाटर होल्स हैं, वो जाते हैं। हाँ, एक फैसिलिटी है कि वन कैन चूज द गाइड्स, जो नेशनल पार्क के गाइड्स हैं,
वो चूज करके आप उस इलाके में जा सकते हैं, क्योंकि ईडीसी के गाइड इतने एजुकेटेड तो है नहीं कि वो अमेरिकन को ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय बता सके। कुछ तो ऐसे पढ़ना लिखना भी नहीं जानते, लेकिन क्योंकि उनको मोटिवेट किया गया कि आप गाय भैंस चराना बंद करो, जंगल को बचाओ, जानवर को बचाओ, और हम आपको सोर्स ऑफ इनकम दे रहे हैं, तो ये हम्म। मोटिवेट किया, उसकी वजह से उनको देना पड़ा कि आप गाइड बनो, आप जंगल जाओ, घुमाओ, नए नए लोगों के साथ में घूमो, आप इनको जगह बताओ, जानवर बताओ, और मस्त रहो। आप जंगल में रिस्क क्यों लेते हो? तो वो भी खुश हैं। और धीरे धीरे नंबर 6 से शुरू हुई, नंबर 7 हुआ, फिर नंबर 8 हुआ 2 साल बाद में, फिर नंबर 9 हुआ 3 साल बाद में, नंबर 10 हुआ 4-5 साल बाद में। या कि 5 साल का 6 साल का टाइम लगा, लेकिन 5-6 साल में नंबर 6 से 10 तक जितना इलाका हमने उन ग्रेजियर्स से अलग किया, उन ग्रेजियर्स से बचा करके टूरिज्म एक्टिविटीज स्टार्ट की, टाइगर मूवमेंट का इलाका बनाया। पहले वहां टाइगर नहीं दिखते थे, कोई सिम्टम्स नहीं था टाइगर का, लेकिन जब ये टूरिज्म एक्टिविटीज शुरू हुई, टाइगर ब्रीड कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि सपोज मुकुंदरा का हम लेते हैं, मुकुंदरा के लोकल लोगों को जोड़ दो, लोकल लोगों को जोड़ करके और उनको मोटिवेट करके और उन्हें एजुकेट करो कि यहाँ पर टाइगर आएगा तो आपको ये बेनिफिट है। अलग अलग तरीके के बेनिफिट हो सकते हैं। ग्रेजियर्स हैं तो उनको 2 चीजें भी बता सकते हैं जो हमने स्टार्ट की थी रणथंभौर में, कि आपके पास लेट्स से 10 कैटल्स हैं, 10 में से सिर्फ 2 ही तो दूध दे रही हैं, बाकी आप 8 को तो फ्री में फीड कर रहे हैं ना, यानी कि आपका खर्चा तो 10 कैटल्स का है, बट यू आर अर्निंग फ्रॉम 2 कैटल्स ओनली। तो जैसे रणथंभौर में किया गया था, वो योजनाएं यहाँ भी चालू करनी चाहिए कि उन 10 कैटल्स को वो बेचे, ओके। और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के ऊपर नेशनलाइज्ड बैंक से लोन मिले, और वो लोन उनको एक नॉर्मल रेट में, जो सबसे कम रेट हो, उसमें एक अच्छी ब्रीड के कैटल, जैसे कि वहां पे हॉलिस्टीन और जर्सी काउस हमने प्रोवाइड करवाई थी। अच्छा अच्छा। आप आप 10 भैंसों को चारा खिला रहे हैं, 2 से दूध ले रहे हैं, आप 2 हॉलिस्टीन या जर्सी गाय को खाना खिलाइए और 10 भैंसों जितना दूध मार्केट में सेल कीजिए, यानी कि आपको खर्चा कम पड़ रहा है, आपको जो उस गाय से आउटपुट ज्यादा मिल रहा है। और लोन भी इजी इंस्टॉलमेंट्स में बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये फैसिलिटीज करवाई थी। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा फतेह सिंह बोर्ड थे हमारे, जिन्होंने रणथंभौर को बनाया। उन्होंने काफी कुछ मेहनत की थी इस और काम बढ़ाने पे, उनके ऊपर लिंक थे, तो नेशनलाइज्ड बैंक से बात करके और ऐसी और डेयरी की और ये योजनाएं उन्होंने चलाई। तीसरी चीज, ग्रेजिंग तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से रुक जाएगी। वुड कटिंग जो है उसमें जो हमने रणथंभौर किया था कि जो भी गांव है पेरिफेरी एरिया में, उनको सब्सिडी बेसिस के ऊपर किचन गैस सिलेंडर प्रोवाइड करवाए गए। 50 पर गांव वालों की जो डिपेंडेंसी थी फॉरेस्ट के ऊपर, वो लगभग खत्म हुई, कम हो गए। और कम हो गई तो फॉरेस्ट बचा। फॉरेस्ट बचा तो एनिमल्स का मूवमेंट बढ़ा, एनिमल्स का मूवमेंट बढ़ा तो टाइगर का मूवमेंट भी बढ़ा, और टाइगर भी बचा। तो सबसे पहले लोकल कम्युनिटी को इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर क्रिएट करके एक प्रॉपर पॉलिसी बने, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, जिसमें कि 2 साल 3 साल या 5 साल की पॉलिसी बने, उसके ऊपर वर्क हो। उसके बाद में आप एनिमल्स को यहाँ इंट्रोड्यूस किया, सक्सेसफुल नहीं रहे बताइएगा। नहीं तो सर ये किसकी मतलब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पॉलिसी बनाना, लोकल कम्युनिटी के साथ काम करना? ये किसी एक जने की तो नहीं होती है मेरे ख्याल से। आपने पॉइंट पकड़ लिया। देखिए, यहां पर एक गैप है ब्यूरोक्रेट्स और डेमोक्रेट्स के बीच में, दोनों को मिलके एक साथ आना पड़ेगा। सिर्फ एक ऑफिसर जो इसमें गवर्नमेंट को पॉलिटिकल लेवल पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। पॉलिटिकल लेवल पे इन्वॉल्व होकर के गवर्नमेंट की पॉलिटिकल बॉडी और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यानी कि दोनों एक साथ पैरेलल वे में अगर काम करेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। जनरली क्या होता है कि ब्यूरोक्रेट्स कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल ग्राउंड पे उसको रोक दिया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल रिलोकेशन ही देख लें, जब तक रिलोकेट नहीं करेंगे गांव वालों को, एरिया खाली नहीं होगा जंगल का, तो जंगल में जानवर बचेंगे कहाँ से? दोनों के बीच का गैप खत्म करना पड़ेगा, दोनों के बीच का गैप खत्म करके। मतलब ये आपके हिसाब से ये कोटा में भी ये गैप है, आपको लग रहा है ये? बिल्कुल है। तो इसमें मतलब कोटा में नहीं, अच्छा, जगह पर है ये गैप। अच्छा अच्छा, ओके। तो इसको अगर मतलब जो सपने तो काफी हैं कोटा वालों के मन में, मतलब है ना कि एक्सपेक्टेशंस भी काफी है। आपको फ्रैंकली क्या लगता है अभी कितना सफर तय करना बाकी है? लेट्स से अगर दूसरा रणथंभौर खड़ा करना है तो कितना पीछे है, मतलब अभी मुकुंदरा जो प्रोजेक्ट है? मतलब देखिए, प्रोजेक्ट ज्यादा पीछे नहीं है। ओके, अगर ये कर सकते हैं तो 1 साल में रिलोकेशन करके और उस इलाके को ये खाली करवा सकते हैं। अगले कम से कम 3 साल के अंदर वहां पर एक अच्छा ग्रासलैंड और फॉरेस्ट डेवलप हो सकता है। ग्रासलैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बड़े ट्रीज इतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते जितना कि ग्रासलैंड इंपॉर्टेंस रखते। ओके ओके। ग्रास करने के बाद में हर्बीवोर जो है वहां पर इंट्रोड्यूस कीजिए आप। 3 से 4 साल में मुकुंदरा इतना फल फूल जाएगा कि ये दूसरा रणथंभौर बनने के लिए पैरेलल खड़ा हो सकता है 4-5 साल। अच्छा, ओके। तो आप मतलब कहीं ना कहीं पे आप बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल तो है, पर लोगों जो इच्छा शक्ति है पॉलिटिकल क्लास की या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वहां पे कहीं कमी आ रही है। देखिए, ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, पॉलिसीज पे वर्क करने की परमिशन मिलती है ऊपर से। ओके। तो यहाँ पर कुछ जैसे अभी कुछ ऑफिसर्स तो बड़े अच्छे थे मुकुंदरा में, अभी प्रेजेंट में तो मुझे पता नहीं और कौन कौन है, लेकिन मुझे पता है कि कुछ 2-3 महीने पहले तक तो बड़े अच्छे ऑफिसर हैं। वो प्रोजेक्ट बना भी सकते हैं, इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं एनिमल्स को, और वो आगे काम भी कर सकते हैं। लेकिन नंबर 1, वो बिना दबाव के उनके ऊपर उनको काम करने दिया जाए विद पॉलिटिकल सपोर्ट, तो मुकुंदरा 5 साल से ज्यादा दूर नहीं है। ओके ओके। और कुछ तो ऐसी रूमर्स भी मतलब रूमर्स ऐसे बोल रहे थे कि बस सफारी हो ही जाएगी चालू, लाइक आई थिंक अप्रैल की बात थी मेरे ख्याल से। तो उसमें मतलब लाइक वो कितना रियलिस्टिक है? मतलब क्योंकि क्या होता है कि जो आम जनता है, सफारी उनके दिमाग में साल में एक बार या 2 साल में एक बार ही आता है, वरना आदमी अपना काम करता रहता है, अपनी नौकरी करता है, पेशा करता है, घूमने जाता है, नॉन सफारी ट्रैवल भी करता है। तो सफारी हर एक आदमी नहीं सोचता सफारी वाले की क्या चैलेंजेस है क्या नहीं है, उनको रहता है आउटकम क्या हुआ। नॉर्मल इंसान मेंटालिटी है ना, ये आउटकम क्या हुआ, यार एक मुकंदरा एकदम पीछे छूट गया, पता नहीं क्या होगा। तो उन लोगों तक संदेश, आपका क्या संदेश है? मतलब व्हाट इज इन समरी? देखो, सफारी इन लोगों को शुरू करनी चाहिए जितना जल्दी हो सके। ओके ओके। उसके पीछे रीजन है कि जो भी कुछ 5%, 10%, 15%, 12% जो भी कुछ इलीगल एक्टिविटीज अगर कोई मुकुंदरा में हो रही है, तो वो महीने 2 महीने में ऑटोमेटिकली बिना कोई एफर्ट किए हुए, बिना कोई रूल्स रेगुलेशंस या लॉ को इम्प्लीमेंट किए हुए रुक सकती है। अच्छा, थोड़ा इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए, मतलब इसका क्या कनेक्शन है? मतलब कनेक्शन मैं वापस आऊंगा आपको ग्रेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वुड कटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो है इलीगल एक्टिविटीज, ये धीरे धीरे रुक जाएगी उस इलाके में जहां पर रेगुलर, मैं टाइगर साइटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं सफारी की बात कर रहा हूं, जिसमें व्हीकल जाएगा घूम के आ जाएगा। ठीक है, जिसमें व्हीकल जाएगा घूम के आ जाएगा। मैं टाइगर साइटिंग की गारंटी है उसकी बात नहीं कर रहा। व्हीकल जाएगा एक रेगुलर बेसिस पे, गाड़ियां सवेरे जाएगी, आफ्टरनून में जाएगी। तो जिस इलाके में वो ट्रैवल कर रही है, जिस इलाके को वो विजिट करके आ रही है, तो उस इलाके में कोई इलीगल एक्टिविटीज है, फॉर एग्जाम्पल, वो तो उस जगह धीरे धीरे बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी तो आपके जंगल का जो मेन मोटो है सफारी स्टार्ट करने का, वो धीरे धीरे फुलफिल होना लगेगा, क्योंकि जब ये एक्टिविटीज बंद हो जाएगी तो एनिमल्स का मूवमेंट उस तरफ बढ़ना
एनिमल्स का मूवमेंट बढ़ेगा तो सफारी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अभी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इनको से स्टार्ट करनी चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप कह रहे हैं कि अब चालू कर दीजिए, परफेक्ट टाइम का वेट ना करें, वो चालू करने और सफारी एक्टिविटी के कारण भी जो बॉर्डर लाइन क्रिमिनल्स होते हैं या इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं वो अपने आप दूर हट जाएंगे। अभी वो इसलिए नहीं हट रहे क्योंकि उनको भी शायद ऐसा लग रहा होगा कि क्या ही होता है यहाँ पे, कुछ भी तो नहीं होता। दूसरी चीज, आसपास की जो कम्युनिटी है उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। कई लोगों के ख्वाब होते हैं जिप्सी में बैठ के घूम और पैसा भी मिले, तो ये जो चीजें है ना, ये जब क्रिएट होगी तो ऑब्वियसली वो सपोर्ट करेंगे, डिपार्टमेंट का भी, गवर्नमेंट का भी, एनिमल्स को भी हेल्प करेंगे, लोकल कम्युनिटी टूरिज्म इंडस्ट्री को भी हेल्प करेंगे। और जब वो आगे आएंगे तभी आप एनिमल बचा सकते हो, तभी आप सफारी का मेन जो मोटो है, जो पर्पज है, वो सॉल्व कर सकते हो। जब तक लोकल कम्युनिटी आपके साथ नहीं है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये जो सफारी स्टार्ट होगी तो लोकल कम्युनिटी में जो इंटरेस्ट क्रिएट करना है वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा उनके अंदर, और वो टाइगर को बचाने में, फॉरेस्ट को बचाने में, वो जंगलात को बचाने में, वो एनिमल्स को बचाने के लिए अपने आप आगे आना शुरू हो जाएंगे। उनको ज्यादा एजुकेट नहीं करना पड़ेगा, अभी तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शुरू में मेहनत लगेगी, पर एक बार वो एक्टिविटी देखेंगे तो some of them might also get inspired to become part of it, मतलब। Okay, yes. Okay, got it. And सर ये एक और अभी recent डेवलपमेंट से ये हुआ है, ये ओपिनियन बना है, मतलब कि अक्सर कंपटीशन टाइप की भावना रहती है ना, कि मेरे चलो रणथंभौर तो बहुत आगे है, पर अरे देखो बूंदी वालों ने तो चालू कर दी सफारी, लो अपन तो बैठे रह गए, है ना, क्योंकि रामगढ़ में शायद ऑफिशियली चालू हो गई है ना। तो कुछ लोग ऐसे भी उसको डिसमिस कर देते हैं कि अरे पॉलिटिक्स है, ये है, वो है। तो रामगढ़ में सर कैसे, मतलब क्योंकि रामगढ़ शायद का जो स्टोरी है वो बाद में डेवलप हुई है थोड़ा मुकुंदरा के बाद, पर ऐसा लगता है कि द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन वाज वे फास्टर देन मुकुंदरा। देखिए, रामगढ़ वो इसलिए स्टार्ट हो पाई ज्यादा आसपास के गांव का ऐसा नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, आप देखिए ये काम मुकुंदरा में भी हो सकता था। ओके, मुकुंदरा में बाकायदा हो सकता था। थोड़ा सा टेरीन रामगढ़ से मुकुंदरा का थोड़ा रफ टेरीन है, रामगढ़ का थोड़ा स्मूथ है। रामगढ़ को जैसे ही इंट्रोड्यूस किया गया, वहां पर एक रणथंभौर में इतने सालों से काम किए हुए ऑफिसर्स को वहां पे लगाया। तो उन्होंने आते ही जो काम वो वहां पर सफारी टूरिज्म से या कंजर्वेशन से जो कर रहे थे, उन्होंने आते ही इम्प्लीमेंट कर दिया। और इम्प्लीमेंट होते ही उसके ऊपर वर्कआउट किया, और वर्कआउट करके तुरंत उन्होंने अपने हिसाब से एक स्टेप लेकर के सफारी स्टार्ट करवा दी। मुकुंदरा में बार बार ऑफिसर्स चेंज होते रहे, परमानेंट लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा कोई ऑफिसर नहीं लगाया गया जो कि रणथंभौर में काफी सालों से इस लाइन से जुड़ा हुआ हो, सफारी से रिलेटेड वर्क से, और आकर के वो उसके ऊपर वर्कआउट कर सके। ये भी एक माइनस पॉइंट है। ओके। मुकुंदरा का भी बड़ा अच्छा फॉरेस्ट है। तो आपको लगता है कि अगर ये जो मतलब मुकुंदरा में पोटेंशियल है, रणथंभौर जितना ही पोटेंशियल है, और इफ जो आपने गैप्स हाईलाइट किए उस पे ध्यान दिया जाए तो 3 से 5 साल में इट कैन कैच अप, मतलब यस, कैन बी एट दैट लेवल इजीली, इट कैन कैच। ओके आई थिंक मेरे साइड से सारे सवाल मैं कवर कर चुका हूँ अभी। इस आई थिंक सवाल तो और बहुत सारे हैं, पर आई थिंक एक पॉडकास्ट के लिए अभी काफी है। काफी नॉलेज आपने शेयर की, काफी पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए बेझिझक। तो thanks a lot for your time, and we will definitely be in touch with you for our podcast and also for any Mukundra related queries or discussions. बिल्कुल, जब इच्छा हो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, और मैं शेयर करूंगा मेरी बुक के स्लाइड्स आपको। For sure, yeah, for sure. Thanks a lot. Yeah, thank you for your time. You're welcome, sir. Bye.